कल का जो वो हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट किया था वो सर्वेयर का एग्ज़ाम था। तो उसमें हमारा जो आफ्टर वेरिफिकेशन ना उनका 1574 कैंडिडेट्स था और उसमें से ये आपका स्पोर्ट्स पर्सन्स 48 और एक्चुअल जो कल का दिन में जो अपीयर किया था इन ऑल द 3 एग्ज़ाम वेन्यूज़ वाज 1166। तो हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 3 वेन्यूज़ में किया गया था। वन वाज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर, द सेकेंड वाज अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन and the third was Dera Natung College. See, basically, for the conduct of the exam, we entrust this responsibility with the Deputy Commissioner, who is also the District Superintendent of the exam. So, उनका responsibility होता है कि उनका तरफ से nodal officer of the concerned exam, then center superintendents, assistant center superintendents, और जितना आपका इन्विजिलेटर्स और MTS स्टाफ है वो लोग अपॉइंट करता है। तो आफ्टर अपॉइंटमेंट दे इंटीमेट अस, दे गिव अस द लिस्ट, एंड आफ्टर द लिस्ट इज रिसीव्ड वी कॉल देम फॉर अ ट्रेनिंग टू ब्रीफ देम regarding the various duties that they are supposed to observe during the conduct of the examination day. And apart from that, we also, from the side of the controller of examinations, we also send certain instructions which are to be followed in respect to the SOPs, because we have a standard operating procedure. So that is given to the district superintendent, and we ensure that these SOPs are followed in true letter and spirit. एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग जब एडमिट कार्ड इशू करता है तो एडमिट कार्ड का पीछे भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो उसमें क्लियर कट पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग, विद रिस्पेक्ट टू द एंट्री। तो उसमें आपको क्या क्या आप प्रोहिबिटेड है पूरा उसमें आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ होता है ना। तो उसमें ऑब्वियसली मोबाइल्स, उसके बाद में मैंने अपार्ट फ्रॉम द एडमिट कार्ड and apart from the one document requiring identification, apart from these 2 documents, nothing else is allowed. This has been clearly written in the admit card in the very beginning itself. So right from the beginning of the examination procedure, the candidate knows beforehand that you are not supposed to bring these prohibitory items, and in case they bring it, it is also written that resorting to any unfair means will render rejection of your candidature and debarment either permanently or for a specific period. तो ये मांग के चलता है कि कैंडिडेट का नॉलेज में होता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, on the day of the examination, we ask the district superintendent to ensure that there is a frisking team in place at the exam venue, and also to ensure that there are separate personnel for male and female candidates. So this is in place in all the exam centers. So one is the admit card, where you are already told that you are not supposed to bring these certain items. Then secondly, we have the frisking team in place. Then apart from that, after the candidates take their seat in the examination hall, the invigilators also make an announcement. That is the third stage. So in that stage also, in case a candidate by mistake also brings in, so there also they are given an opportunity to surrender by chance na mobile ya kuch laya, they are also given an opportunity. And then this time we have installed jammers in government higher secondary school and DN college, and APSC mein to already it is there in place. So these are the steps that we have taken to ensure that no kind of, to maintain transparency in the exam process. Yes, yesterday actually I was in the control room. So around 12:40 we had received a message from the observer who was on duty, informing us that a lady candidate has been caught with a mobile inside the exam hall. So immediately the controller of examination was informed, and then as per the laid down SOP, the center superintendent was asked
to file an FIR and take an undertaking and all the other formalities which are required to be taken in such cases. अभी तक तो वो specific वो नहीं दिया गया है. So actually we are waiting for police report also. So after that जो है जो process जो करना है कर लेगा. जो पकड़ा गया है एग्जामिनेशन हॉल से वो तो एक लेडी कैंडिडेट थी and the other person of which that has been reported but we are not sure who it is. So actually it has been the endeavor of APSSB to provide a very clean and transparent procedure of examination so that meritorious candidates or deserving candidates get their due place in the different departments. So my message to the candidates who would be appearing in the future exams would be that please read the instructions properly that are being given on the website, that are being given in the admit card thoroughly so that such lapses do not happen in future. And taking an example from this recent incident, it should be a deterrent for you in future. एक APSSB जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उनकी तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था विच वाज बीइंग डन ऑन 17th and 18th, दोनों दिन एग्ज़ाम था. इसमें 17 तारीख का एग्ज़ाम जो है वो बिना इंसिडेंट के निकला. टोटल 3 सेंटर्स थे और काफ़ी शांतिपूर्वक और बिना इंसिडेंट के हो गया. 18 तारीख को भी तीनों सेंटर में एग्ज़ाम शुरू हुआ और पीसफुल था. बट करीब 12:30 हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि एक कैंडिडेट, एक फीमेल कैंडिडेट देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही है एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए. तो एक रिटन FIR हमें मिला श्री N प्रमाणिक से, जो कि सेंटर सुपरिटेंडेंट थे. ये जो इंसिडेंट है वो रूम नंबर 25 DN कॉलेज में हुआ है. जैसे ही हमें रिटन इन्फॉर्मेशन मिला हमने इमीडिएटली टेकअप किया, एक केस रजिस्टर किया कि FIR नंबर 313/21 अंडर सेक्शन 417 and 188 IPC. 417 basically is the section for cheating and 188 for not following government order. इसके बाद हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर SI AK झा ने इमीडिएटली प्लेस ऑफ ऑकरेंस को विज़िट किया. वहाँ पे की विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए और एक फ़ोन जो कि सैमसंग S10 ब्लू कलर का है उसको सीज़ किया. इसके अलावा जो एलिजिड एक्यूज थी उसको भी वहीं से हमने डिटेन कर लिया. तो इसमें हमें ये पता चला है कि वहाँ पे जो स्कूल है, वहाँ जो कॉलेज है, वहाँ ऑलरेडी रूम में इन्विजिलेटर्स भी थे और वहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी एज वेल एज ऑब्जर्वर्स सारे लोग अवेलेबल थे एंड टाइम टू टाइम सभी चेकिंग कर रहे थे. और इनिशियली जो है जो लेडी एंटर किया है उसको फ्रिस्किंग भी किया गया था. अनफॉर्चुनेटली फ्रिस्किंग में मोबाइल फ़ोन डिटेक्ट नहीं हुआ. अभी इस केस में हमने टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है. सबसे पहला मिस ताकोनी दोदुम, एज 28, शी इज़ फ्रॉम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड अभी जो है बारापानी नाहरलगुन में रह रही है. दूसरा श्री सन्नी दोदुम, एज 38, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड राइट नाउ ही इज़ रिसाइडिंग एट FNG सेक्टर. और तीसरा नियाज़ अहमद, 31 ईयर्स, ओरिजिनली फ्रॉम बोंगाईगांव आसाम, लेकिन अभी जो है वो G एक्सटेंशन नाहरलगुन में रिसाइड कर रहा है. ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में हमने बहुत सारे आइटम्स सीज़ किए हैं. उसमें से मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूँ. हमने टोटल 3 मोबाइल फ़ोन सेट सीज़ किया है. एक जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में यूज़ हो रहा था सैमसंग S10. दूसरा जो है Oppo A5 जो कि सन्नी
दोदुम का फ़ोन है जिससे व्हाट्सएप मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा था। और तीसरा हमने मोबाइल हैंडसेट एक वीवो का सीज़ किया है जो कि नियाज़ अहमद का है। एंड इसमें बेसिकली उसने जो है आंसर्स ऑनलाइन सर्च किया था गूगल की सर्च इंजन के थ्रू। इसके अलावा हमने एक रफ़ नोट जिसमें आंसर्स लिखा गया था ऑलरेडी आंसर्स लिख करके जिसको फ़ोटो क्लिक करके वापस भेजा जा रहा था, वो नोटबुक भी हमने सीज कर लिया है। नोटबुक में एग्जैक्टली वो उन पेजेस को तो फाड़ दिया गया है जिसमें था, लेकिन उसका पेन इम्प्रेशन रह गया है, तो वो हमने सीज कर लिया है और इट इज़ प्रूव दैट वही है। एंड इसके अलावा हमने क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जैमर्स भी लगे हुए थे, तो APSSB से हमने रिक्वेस्ट किया और टोटल 28 जैमर्स हमने सीज किया है टू फाइंड आउट कि जैमर के रहते हुए मोबाइल फ़ोन क्यों चल रहा है। देन हमने जो कैमरा फुटेज है उस रूम का, उसको भी हमने सीज किया है ताकि एसर्टेन किया जाए कि ये पूरा वाक़या जो है कैसे हुआ है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से ये हमें पता लगा है कि 17 तारीख जो है 17 के नाइट को ताकुनी दोदुम जो है जो कैंडिडेट है, उसने अपने कज़िन ब्रदर सन्नी दोदुम को फ़ोन किया कि एग्ज़ाम में उसकी मदद करें। तो जैसे ही फ़ोन किया तो सन्नी क्योंकि एग्ज़ाम का आंसर्स खुद नहीं बता सकता था, तो उसने इमीडिएटली अपने दोस्त नियाज़ अहमद को फ़ोन किया। तो नियाज़ अहमद ने शाम को इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 o'clock के करीब फिर से कैंडिडेट का अपने भाई को फ़ोन आया कि आप मदद कीजिए। तो इसके बाद सन्नी ने फिर से नियाज़ को फ़ोन किया कि घर आ जाओ, ज़रूरत है। तो सन्नी ईटानगर से नाहरलगन गया, वहाँ से नियाज़ को पिकअप करके आया, आके दोनों करीब 10 बजे घर पे पहुँच गए। इसके बाद 10:27 को सबसे पहले एक मैसेज आता है कैंडिडेट से अपने भाई को क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो। तो इस तरह से मैसेज आने लगता है और यहाँ आंसर्स लिखने लगते हैं। तो टोटल जो है 10:27 से लेके 12:40 तक हमने देखा है कि मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है और ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इन्होंने जो है लिख करके भेजा था। तो उसके बेसिस पे काफ़ी सारा आंसर कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है। उसके बाद जब वहाँ पे इन्विजिलेटर्स को डाउट हुआ तो इमीडिएटली सर्च किया गया, चेकिंग में ये फ़ोन पकड़ा गया कैंडिडेट के पास। उसी के बाद ही पुलिस को पता चला एंड दिस इन्वेस्टिगेशन वाज डन ऑन ए वेरी फास्ट बेसिस एंड आफ्टर 1 o'clock within 6 to 7 hours we were able to locate all 3 of them और तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.